السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک کی جو کلاس چل رہی ہے اس میں ہمارا سورہ بقرہ چل رہا ہے، اور ہم نے اور آپ نے مل کر آیت نمبر 34 تک پورے تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھ لیا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 35 سے شروع کریں گے اور 2 آیتوں کو انشاءاللہ تعالی کور کریں گے، 35 اور 36۔ چونکہ آیتیں لمبی لمبی ہے، بڑی بڑی ہے، تو اس لیے ہم 2 آیت ایک آیت کر کے ہی پڑھیں گے، کیونکہ ہم تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تجوید کے قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے فالو کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم 2 اور 3 آیت، یا اگر کافی بڑی آیت ہے تو ایک آیت کو ہی کور کریں گے۔ تو آج ارادہ کرتی ہوں کہ آیت نمبر 35 اور 36 انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں، چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو یہاں تک تلاوت کیا ہے۔ اب چلے دیکھیں گے، سب سے پہلے آیت نمبر 35۔ وَقُلْنَا، وَقُلْنَا، قُلْنَا میں الف مدہ ہم کریں، وَقُلْنَا، وَقُلْنَا، وَقُلْنَا الف مدہ بھی کیا، اور قاف کو بھی ہم نکالیں گے کہاں؟ حلق سے۔ قاف، قاف، قاف جو ہے نا یہ بولڈ حرف میں سے ہے، یعنی کہ موٹے حرف میں سے ہے۔ جن حرفوں کو موٹا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے انہی حرفوں میں سے ایک ہے قاف، ٹھیک ہے؟ تو قاف کو ہم منہ بھر کر بولیں گے۔ وَقُلْنَا، وَقُلْنَا، وَقُلْنَا یا مد آدمس، آدمس، آ کو پھر ہم کیوں کھینچ رہے ہیں؟ کیونکہ حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا مد ہے نا، کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے۔ تو یہاں پر چونکہ ہم نے اسٹریچ کیا زیادہ، ایک الف سے زائد اس لیے کھینچا کیونکہ یہاں پر کھڑا زبر تو ہے لیکن اس کے اوپر کیا ہے؟ مد ہے، اسی لیے ہم اس کو زیادہ کھینچیں گے اور اس کو ہم کم کھینچیں گے، یعنی کہ ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچیں گے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ، ہے نا، آ کو بھی ہم کھینچ رہے ہیں لیکن کتنا؟ بس ایک الف کی مقدار کے باقدر۔ یا آدمس، یا آدمس، فرق محسوس ہوا؟ یا کو ہم بہت زیادہ کھینچ رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر مد ہے، اور مد کی جو بتائی گئی ہے کہ مد کو کتنا کھینچنا چاہیے، جو ایک بتایا گیا ہے کہ اتنا مد کو کھینچنا ہے 3 سے 4 الف کی مقدار کے باقدر، تو اتنا ہی کھینچنا ہے آپ نے، اور لازم کھینچنا ہے۔ اس کے بعد دامس، دا کو ہم جلد پڑھ رہے ہیں زبر کی حرکت کے ساتھ، میم کو بھی ہم جلد پڑھیں گے کیونکہ میم کے اوپر پیش ہے، لیکن پیش کے بعد آنے والا جو حرف ہے میم کے بعد اس کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے۔ تو جب بھی کوئی حرف کے اوپر سکون ہو تو اس کو پیچھے والے حرف یعنی کہ اس سے پہلے جو حرف ہوتا ہے ان دونوں کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ملاتے ہیں۔ تو ہم میم کو سین سے ملا دیں گے، تو ہم پڑھیں گے وَقُلْنَا يَا آدَمُ، ہو گیا یہاں تک؟ کن، کاف نون پیش کن، لیکن یہاں پر دیکھیں نون ساکین ہے اور نون ساکین کے بعد کیا ہے؟ حمزہ۔ جب بھی نون ساکین یا تنوین میں سے کوئی بھی
तनवीन 3 चीजें कहलाती है, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। तो 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। तो ये तीनों चीजें या फिर नून साकिन हो और उसके बाद कोई ना कोई कायदा जरूर बनता होगा। तो यहाँ पर देखिए नून साकिन है और उसके बाद हर्फ क्या है? हमजा। तो यहाँ पर इजहार का कायदा बन रहा है, यानी कि नून की आवाज को जाहिर करेंगे और ये कहलाता है इजहार करना। इजहार कितने हर्फ में होता है? 6 हर्फ में होता है। कौन कौन से? जो हर्फ हुरूफे हलकी कहलाते हैं उसी हर्फ को कहते हैं जब वो तनवीन या नून साकिन के बाद आए तो वहां पर इजहार करते हैं। हुरूफे हलकी जो है ना वो 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। ये 6 हर्फ में से कोई भी हर्फ अगर तनवीन या नून साकिन के बाद आती है तो वहां पर हमें करना होता है इजहार, यानी कि नून की आवाज को जाहिर करना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 6 हर्फ ना, ये 6 हर्फ निकलते हैं हलक से, इसीलिए इन 6 हर्फों का नाम हुरूफे हलकी रखा गया या कहा जाता है। तो वो 6 हर्फ क्या है? वो 6 हर्फ में है हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। ये 6 हर्फ है। ये 6 हर्फ में से कोई भी एक हर्फ अगर आए तनवीन या नून साकिन के बाद तो वहां पर कहना है कि यहाँ पर इजहार का कायदा हो रहा है और यहाँ पर नून की आवाज को सिर्फ और सिर्फ जाहिर करना है, देर नहीं लगानी और ना ही नाक से आवाज निकालनी है और ना ही छुपाना है, ये कोई चीजें नहीं करनी। तो यहाँ पर हम सिर्फ नून की आवाज को जाहिर करेंगे। किस तरह से? यहाँ पर नून की आवाज को जाहिर कर दे, उसके बाद जाएंगे अंता। यहाँ पर देखिए जब हम हमजा को नून से मिला रहे तो यहाँ पर फिर एक नून साकिन आ गई है ना, नून साकिन के बाद ये ता आ गया। तो अब ये नून साकिन के बाद ता आ गया तो ये हो गया इख्फा का कायदा। यहाँ पर हम इजहार कर रहे थे क्योंकि नून साकिन के बाद हमजा आ रहा था, यहाँ पर हम इख्फा करेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ है? ता है। और ये जो ता है ना, इख्फा कितने हर्फ में होता है? जब तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हर्फ में से कोई एक हर्फ आए। ठीक है, हुरूफ इख्फा कितने हैं? 15 है। ये भी मैंने नूरानी कायदे में आपको तफसील से लेसन डाला हुआ है, पढ़ाया हुआ है। अगर आपको नहीं याद है कि हुरूफ इख्फा कितने हैं और क्या क्या है तो वो जाकर आप मेरा जो सबक है, लेसन है नूरानी कायदे का जो प्ले लिस्ट है उसमें आप जाकर देखें, हुरूफ इख्फा का लेसन अलग से डाला हुआ है तो वहां से जाकर आप याद कर सकते हैं और इख्फा किस तरह करते हैं वहां समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं फिलहाल इख्फा। वक़ुलना या आदम उस्कुन अंता, अंता नाक में आवाज को छुपा दिया। ठीक है, आगे चलेंगे। वज़ौजुकल जन्नता, वज़ौजुकल, यहाँ पर देखिए ये क्या है? जा है ना, और ये क्या है? जीम। दोनों की आवाज में फर्क है कि नहीं है? लेकिन बाज औकात क्या होता है, लोग जा को भी जीम पढ़ते हैं और जीम को जा पढ़ते हैं इस तरह से, और कुछ लोग तो हर जगह जा ही निकालते हैं और कुछ लोग तो हर जगह जीम ही निकालते हैं। तो हर हर्फ का मखरज अलग है। हर हर्फ को जब हम अदा करते हैं, जब हम निकालते हैं तो उसकी आवाज, उसका जो साउंड होता है वो भी अलग है। तो हम हर हर्फ को किस तरह एक जैसा पढ़ते हैं? कुछ लोग इस तरह पढ़ते हैं वजौजुकल जन्नता, तो क्या हो गया? ये जा नहीं रहा बल्कि यहाँ पर जीम आपने ऐड कर दिया और जा को उड़ा दिया। तो किसी भी हर्फ को बदलना नहीं है, तब्दील नहीं करना, इसलिए मखरज सीखे। मखरज का सीखना जरूरी है। मखरज जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आप उस हर्फ को सही तौर से अदा नहीं कर पाएंगे। तो मखरज का सीखना बहुत 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 जरूरी है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? वज़ौजुकल, ज़ौजुकल, ज़ौजुकल, बिल्कुल आवाज है ना, डिफरेंट है ना, बिल्कुल आवाज। वज़ौजुकल, काफ को फिर हम लाम से मिला दिया, कल। जन्नत, जन्नत, जीम को नून से मिलाया और नून के ऊपर चूंकि शद है तो हम यहाँ पर थोड़ी ठहरेंगे, नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीम नून मुशद्दद का गुन्ना हो रहा है।
नून मुशद्दद का गुन्ना हो तो गुन्ना किसे कहते हैं? नाक में थोड़ी देर आवाज का रोकना गुन्ना कहलाती है। और कभी भी नून और मीम ये दो हर्फ बिल्कुल याद कर ले, नून पर शद आए या मीम पर शद आए तो हम गुन्ना करेंगे, यानी कि नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकेंगे। अब कहेंगे शद क्या होता है, तो शद कहते हैं तशदीद को। तशदीद है उर्दू वर्ड और शद है अरबी वर्ड। तो आप दोनों कह सकते हैं, चाहे शद कह ले चाहे तशदीद कह ले, आपको जिस तरह सहूलत हो उस तरह कह ले। तो ये जो नून के ऊपर है ये क्या है? शद है, यानी कि तशदीद है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? गुन्ना कर रहे हैं। किस चीज का गुन्ना? नून मुशद्दद का गुन्ना। तो हम यहाँ पर करेंगे, देखें, वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नता, जन्नता, ठीक है। जब हम गुन्ना करते हैं नाक में आवाज को हम क्या करते हैं? रोकते हैं। जब हम इख्फा करते हैं तो नाक में आवाज को छुपाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें साउंड अलग निकलेगा, अंत, अंत, और यहाँ पर जन्नता, जन्नता। यहाँ पर अगर हम करें इस तरह का तो देखो किस तरह का साउंड निकले, जन्नता, जन्नता, इस तरह नहीं करना। जन्नत, दोनों दांत हमारी सटी होगी, जन्नत, जन्नत। और जब हम इख्फा करते हैं तो हवा में रहती है हमारी जबान, अंत, जबान हमारी किसी तरफ नहीं टच होगी, अंत। और यहाँ जन्नत, जन्नत। तो यही फर्क है इख्फा में और गुन्ना में। आगे चलेंगे, वकुला, वकुला, वाव जबर वा, काफ पेश कू, लाम अलिफ जबर ला, ला में हम अलिफ मद्दा कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल। मिन्हा, यहाँ पर भी देखे इजहार करेंगे। नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ है? हा है। तो यहाँ पर इजहार करेंगे, क्यों? क्योंकि जो हरूफ हल्की बताया जो 6 हर्फ उसमें से हा भी था, नून साकिन के बाद आ गया हा, तो यहाँ पर इजहार करेंगे और हा को फिर अलिफ मद्दा के साथ पढ़ेंगे। आगे रागदन, रागा और दाल दो जबर दन। यहाँ पर फिर देखें, यहाँ क्या है? दो जबर की तनवीन है। मैंने क्या बताया कि नून साकिन या तनवीन, तनवीन में वो कोई भी हो, चाहे दो जबर की तनवीन हो, चाहे वो दो जेर की तनवीन हो, चाहे वो दो पेश की तनवीन हो, कोई भी हो तीनों में से, इसके बाद हा आए तो क्या होगा? इजहार का कायदा होगा। हा आए या हमजा आए या हा आए या गैन आए या खा आए, ये 6 चीज आए तो हम यहाँ पर इजहार करेंगे। किसके बाद आएगा? तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद। तनवीन में कितनी चीजें आती है? 3 चीजें आती है, दो जबर, दो जेर, दो पेश। तो यहाँ पर देखें दो जबर के बाद हा है, यहाँ पर भी हम इजहार करेंगे। यहाँ पर भी हमने इजहार किया था ना, आपको याद होगा कि इजहार का कायदा यहाँ पर हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर नून साकिन के बाद हमजा आ रहा था और यहाँ भी इजहार का ही कायदा बन रहा, लेकिन यहाँ पर दो जबर की तनवीन के बाद हा आ रहा। तो कायदा एक ही है, लेकिन जो हरकत है ना वो अलग अलग है। चाहे कहीं पर नून साकिन आ जा रहा है, कहीं पर दो जबर आ जा रहा है, इस तरह से। तो ये चीजें तब समझ में आएगी जब आप नूरानी कायदे को पूरे प्रॉपर तरीके से, पूरे अच्छी तरह से रट जाएंगे और अपने जहन में बसा लेंगे, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे इजहार, रागदन हैसु, रागदन हैसु। हाई में हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर तो हमने इजहार कर दिया क्योंकि दो जबर के तनवीन के बाद हा है। उसके बाद हाई जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए या साकिन के बाद क्या पहले क्या है? जबर है। यहाँ पर यालीन का कायदा बन गया। यालीन कब बनता है? जब या साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर आए। तो यहाँ देखिए या साकिन है, उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर आ गया। इसको हम किस तरह पढ़ते हैं? नरमी के साथ और जल अदा करते हैं यालीन को। तो हम जल्दी करेंगे और नरमी के साथ पढ़ेंगे, हैसु, हैसु, शितुमा, शी, शीन हमजा जेर शी। यहाँ पर हमजा साकिन है ना, हमजा के ऊपर क्या है? सुकून है। तो जब भी हमजाए साकिना आ जाए तो वहां पर हमें क्या करना है? झटका देना, शी, शी, शी,
शितुमा, तुमा, ता को जल पढ़ रहे, मारूफ रखेंगे आवाज, ठीक है, मजहूल आवाज से बचे, तोमा नहीं पढ़ना, तोमा गलत हो जाएगा, तुमा, तापेश टू, तापेश टू, तुमा, तुमा, इस तरह से। माँ में हम अलिफ मद्दा कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्टॉप करके पूरा पढ़ते हैं, गौर से सुनिए। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा। एक बार फिर देखें, वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा। हो गया यहाँ तक कंप्लीट वन ब्रीथ में। अगर आपको वन ब्रीथ में नहीं हो पाता है यहाँ तक, तो आप एक काम करें, पढ़ें इस तरह से, गौर से सुने। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नह, यहाँ पर स्टॉप कर दे, उसके बाद फिर यहाँ से दोहराए, वज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा। हो गया ना, दो सांस में हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ तक। अगर आपकी सांस अच्छी है, ज्यादा है, तो आप पूरा कंप्लीट कर ले एक सांस में, लेकिन अगर नहीं है तो इस तरह पढ़े और ट्राई भी करते रहे कि वन ब्रीथ में हम वन आयत को हम कंप्लीट कर ले, या जहां तक स्टॉप का जो सिंबल हो वहां तक हम कम से कम स्टॉप कर ले। जैसे कि यहाँ पर स्वाद है, यहाँ पर हम रुक सकते हैं, तो यहाँ पर हमने रुका। आगे चलेंगे, वला तक़रबा, वला, वला अलिफ मद्दा, तक़रबा, तक में करेंगे कलकला, तक़रबा, तक़रबा, रा को पुर रखेंगे और बा में फिर अलिफ मद्दा, वला तक़रबा, वला तक़रबा। जो कायदा है वो पूरे तौर पर अदा होना चाहिए और कंप्लीट तौर पर, जैसे कि क़ाफ में हमें कलकला भी करना है और रा को पुर भी रखना है ना। तो क्या पढ़ेंगे, वला तक़रबा हादिहिश, हादिहिश, हा में खड़ा जबर है, एक अलिफ की मकदार के बाकदर खींचेंगे, दाल जेर दी और हा शीन जेर हिश, हो गया। शजरता, शाजराता, शाजराता, ठीक है। बाज लोगों का यहाँ पर गलती होती है, वो क्या होती है, पढ़ते हैं शजराता, इस तरह पढ़ते हैं शजराता। अगर शजरता आप पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि जीम के ऊपर फतहा नहीं, जबर नहीं, बल्कि जज्म है, यानी कि सुकून है, ये माना हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए जीम के ऊपर अलग फतहा है, रा के ऊपर फतहा है, ता के ऊपर भी फतहा है, यानी कि जबर है। फतहा कहते हैं अरबी में और जबर कहते हैं उर्दू में। तो आपको जिस तरीके से समझ में आता है उसी तरीके से समझे। मैं उर्दू जबान वालों को समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए मैं उर्दू में ज्यादातर बताती हूँ कि ये जबर है। तो यहाँ तक जब हम पढ़ेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे, वला तक़रबा हादिहि शजरता, शजरता बिल्कुल वाज़े और साफ व शफाफ तौर पे, शजरता, शजरता, ठीक है। आगे फतकूना, फतकूना, फाता जल पढ़ेंगे, दोनों के ऊपर जबर है, कू में हम करेंगे वाव मद्दा, क्यों, क्योंकि वाव साकिन से पहले क्या है, पेश है। वाव मद्दा कब होता है, जब वाव साकिन से पहले पेश आए। वाव मद्दा को किस तरह पढ़ते हैं, एक अलिफ की मकदार के बाकदर खींच के। अगर इसको तफसील से आपको जानना है वाव मद्दा क्या है, किस तरह पढ़ा जाता है, इसका रिलेशन जो मैंने तफसीली तौर पर बनाकर डाला है, वो आप जाकर नूरानी कायदे में देखें। आपको नूरानी कायदे में हर कायदा मिल जाएगा और वहां पर मैंने डिटेल से पढ़ाया और समझाया है, तो वहां पर आप जाकर चेक कर ले। तो पढ़ेंगे फतकूना, ना में अलिफ मद्दा फिर करेंगे, फतकूना, फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, मिनज़्ज़ालिमीन, मिनज़ ज़ा में खींचेंगे क्योंकि खड़ा जबर है,
ज़ौ लाम को जल पढ़ेंगे, ली मी को फिर खींचेंगे चूंकि यहाँ पर या मद्दा हो रहा है, या साकिन से पहले ज़ेर है। या मद्दा कब होता है? जब या साकिन से पहले ज़ेर आए। या मद्दा को किस तरह पढ़ते हैं? एक अलिफ की मकदार के बाकदर खींचकर। एक अलिफ मकदार समझ ले 2 या 3 सेकंड, 2 सेकंड कम से कम। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मी और नून के ऊपर वक्फ करेंगे तो जबर हट जाएगा और हम यहाँ पर लाएंगे सुकून। यहाँ तक पढ़ रहे हैं, गौर से सुने। वला तक़रबा हाज़िही शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। एक बार और सुन ले। वला तक़रबा हाज़िही शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। तो देखें, कायदे का भी ख्याल रखना है, कहाँ पर पुर करना है, कहाँ पर बारीक रखनी है, कहाँ पर वाव मद्दा है, कहाँ पर अलिफ मद्दा है, कहाँ पर कलकला है, कहाँ पर खड़ा जबर है। सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हम एक एक आयत को कंप्लीट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वक्त बहुत लगेगा, लेकिन क्या है कि हमें हिम्मत रखना है और इसी तरह से सीखते जाना है। और इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने हयात दिया और उस वक्त तक रहे तो इंशाअल्लाह ताला पूरे कुरान को हम मुकम्मल करेंगे पूरे तजवीद के कवायद के साथ, इसी तरह एक एक आयत दो दो आयत को। और जो भी मेरी बहनें मेरे भाई सीख रहे हैं वो जुड़े और सीखे। तो एक बार मैं ऊपर से तिलावत कर देती हूँ। आज के लिए बस एक ही आयत, क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाने से फिर लोग ये हो जाते हैं कि काफी लंबी वीडियो है, तो इसलिए आज एक ही आयत रहने देते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आयत को पढ़ेंगे, आयत नंबर 36 को। तो मैं ऊपर से एक बार तिलावत कर देती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िही शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। तो आज के लिए यहीं तक, ठीक है। तो इसको खूब मश्क करें, खूब प्रैक्टिस करें। और जो मेरी बहनें मेरी वीडियो को देखती हैं और कुछ भी सीखती हैं तो बस बने रहे मेरे चैनल पर, बहुत कुछ आपको मिलेगा। सुनन व फ़राइज़ है और तर्जमा भी है, तो 1 बाय 1 इंशाअल्लाह ताला मैं 1 बाय 1 एक एक चीज़ शुरू कर रही हूँ। उसी तरह हम एक एक चीज़ शुरू करते हुए उसको मुकम्मल भी करेंगे और सीखेंगे, क्योंकि वक्त कम होता है और बहुत सारी जो स्टूडेंट है वो उनको भी पढ़ाना होता है, खुद की भी जो ये है उसको भी जारी रखना होता है, क्योंकि फिर ये चीजें जो है ना अगर हिफ्ज हो जाए तो उसके बाद उसको अगर आप पढ़ते ना रहे तो फिर भूल जाएंगे, और भूलने का बहुत बड़ा वईद है। तो कोई भी चीज अगर कुरान की याद कर रहे हैं तो उसको खूब प्रैक्टिस करते रहे, हमेशा पढ़ते रहे। तो ये सारी चीजें भी खुद को भी पढ़ना होता है। तो उसी वक्त में थोड़ा वक्त निकाल कर मैं वीडियो पढ़ाती हूँ, आप लोगों को बनाकर अपलोड करती हूँ। तो बस सीखे। और जो जो मेरे भाई जो मेरी बहनें अगर कुछ भी सीखा है मेरी वीडियो से, जब से मैं डाल रही हूँ तब से लेकर आज तक कुछ भी सीखा है, तो बस उसके लिए मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा करे और मुझे और मजीद इल्म से नवाजे, और मैं इसी तरह ता जिंदगी, जब तक जिंदगी अल्लाह ने दिया है तब तक मैं लोगों को, बच्चों को पढ़ाती रहूं और सिखाती रहूं। तो चले इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और हम आगे पढ़ेंगे। मुझे बस दुआओं में याद रखें। अगर किसी भी तरह कोई भी एक छोटी से छोटी चीज अगर आपने मुझसे सीखी है, मेरे वीडियो से सीखी है, तो बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।